تفتیش کے ساتھ ظفر شیخ آپ کے سامنے ہیں، اور ایک ایسے پروگرام میں ہم شامل ہیں جس میں یہاں کا لوکل میڈیا بھی شامل ہے، جو کہ لبنہ الہی صاحبہ نے ارینج کیا یہاں. اور اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس میں کسی امیدوار کے حوالے سے یا اس کے خلاف ایسی بات کرنے کے یہ اکٹھے نہیں ہوئے. صرف یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ 18 نومبر کے بعد جو بھی ہمارے امیدوار پاکستانی آزاد الیکٹ ہوں گے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کے بنیادی مسائل کون سے ہیں. اس حوالے سے لبنہ صاحبہ کے دل میں یہ بات تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سارا پروگرام ارینج کیا. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ جب پروگرام یہ الیکشن ختم ہوں گے 18 نومبر کے بعد جو امیدوار سامنے آئیں گے وہ اپنی ذمہ داریوں کو کس طریقے سے نبھاتے ہیں. تو اس میں تمام شرکاء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ پروگرام ضرور دیکھیں اور سنیں اور اس پہ کمنٹس بھی کریں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. ہاں جی، السلام علیکم. آپ سب کو خوش آمدید اور شکریہ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے تو میں تعارف کرواتی ہوں. میری خاتون اول، جسے میں خاتون اول کہتی ہوں، ان کا نام نگہت احمد ہے، اور یہ پہلی پاکستانی جرنلسٹ تھی. ایک وائٹ کالر جاب ان کے پاس تھی. کافی عرصے ڈینمارک کے نیشنل ریڈیو پہ کام کرتی تھی، اردو کی خبریں پڑھا کرتی تھی. تو ابھی پاکستان چلی گئی تھی اور ابھی یہاں رہنا شروع کیا. تو میں کہتی ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ نے 15-20 سال کام کیا، ہمیں اس تجربے کی ضرورت ہے، تو آپ کو جوائن کریں. اس کے سامنے جو ہے محترمہ روزینہ صاحب ہیں، یہ پین تھراپسٹ ہیں اور سوئمنگ کی ٹیچر ہیں. اور جو ہے ہاں جی، تو پھر میں اس طرف بیٹھی ہیں جی راجہ غفور صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ریڈیو آپ کی آواز. اس کے سامنے علی جاوید بیٹھے ہیں. علی جاوید میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کو نا میں تھوڑا سا ایڈاپٹ کر رہی ہوں. میرے سے چھوٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، کیونکہ ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت ہے جس میں یہ جراثیم پائے جاتے ہیں. تو سینئر لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، کچھ ہمیں بھی نئے خیالات کا پتہ چلے گا، کچھ ہم ان کو بھی سکھائیں گے. ہوپفلی اس کے سامنے نعیم حیدر صاحب ہیں. نعیم حیدر صاحب جی، ان کو ٹک ٹاک کا بڑا شوق ہے، اور ان میں بھی معاشرے سے متعلقہ تبدیلیوں کے بارے میں کچھ جراثیم کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، انہیں دلچسپی ہے اور اس کو بات کو پکڑ کے رکھتے ہیں. جو انہیں ہونا ایسا ہے تو ایسے کیوں نہیں، یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے. اس کے بعد آصف صاحب ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، لمبے عرصے تک اپنا ایک صاحب کے نام سے ایک رسالہ چلاتے رہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمارے بزرگ صحافی اسلم صاحب ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے بھی جنگ اخبار جب یہاں آتی تھی تب سے لے کے اب تک انہوں نے کافی لمبا سفر اپنی دلچسپیوں کے ساتھ طے کیا. اور ان کی ایک بات میرے سے ملتی ہے کہ ہم نہیں پرواہ کرتے ہیں ہماری ایج کتنی ہے یا نہیں ہے، ہم عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اس کے بعد شیخ ظفر صاحب ہیں، ماشاء اللہ ان کی کھٹا نہیں کیا ہاں جی، ریڈیو احمد سے پروگرام کر رہا ہوں میں موجودہ، اور نئی دنیا اس کے ساتھ ٹی وی لنک ہے اور پی ٹی وی کے لیے یوٹیوب چینل ہے 2 ڈی کے بھائی صاحب ظفر شیخ آفیسر پہ میوزک پروگرام اور ڈی کے بھائی صاحب پہ میں نے یہ آج کی بیٹھک وائس آف کمیونٹی کے نام سے بلائی ہے. اور آپ لوگ تھوڑے سے حیران ہوں گے کہ یہ الیکشن سے پہلے اس کی کیوں ضرورت پیش آئی. میں واضح کر دوں، میں الیکشن نہیں لڑ رہی اور ہم نے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے بارے میں نہ اچھی نہ بری بات کرنی ہے. جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے لگ بھگ 40-45 سال ملک کو، اپنے ہم وطنوں کو دی ہیں. تو ظاہر انسان کو اتنے اچھے تجربات بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو مجھے جو ہوا میں تحلیل ایک عبارت نظر آ رہی ہے
कि अगर हमने अब कुछ ना किया तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमें डांटने के बजाय वो कहते हैं ना, यू कांट बीट देम देन जॉइन देम। हमें अपने रास्ते बनाने हैं, हम अलग से अपनी दुनिया भी बना के रख सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं कोई महीने 1.5 महीने से सुन रही हूँ जो इलेक्शन की कैंपेन है, और राजा साहब की जो रेडियो है उसकी तवज्जो से मैंने बड़ी दफ़ा भाई आप बताएं कि एग्जैक्टली आप हमारे लिए क्या करेंगे, कैंडिडेट से ना कि क्या करेंगे। नहीं आपको इलेक्शन का शौक है, कोई कहता है मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, कोई कहता है मेरा ये है। मुझे इससे दिलचस्पी है कि हमारे लोग, पहले डेनिश सीखने का मसला था, अब जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका एक बहुत बड़ा मसला है। उनका मसला तर्जुमानी का है, उनका मसला है कि घर में जो उनकी मदद के लिए आते हैं शाम को डायपर पहनाने के लिए या धोने के लिए, उसमें कानून तमीज़ नहीं करती कि मर्द को भेजें या औरत को भेजें। इसी तरह जिन बच्चों को जबरी लिया जाता है उनको उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते क्योंकि वो कानून के मुताबिक है। हम इसमें मुदाखलत कर सकते हैं कि उन बच्चों को अगर उनकी फैमिलियों से अलग किया जाता है तो उसका ऐसी जगह तो पहुँचाया जाए जहाँ से उनकी तहजीब और तमद्दन का ख्याल रखा जाता है, उनके हलाल खाने का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह एक बड़ी परसेंटेज जो है वो यहाँ के अस्पतालों में क्या कहते हैं मुसलमान पेशेंट्स की है। वेजिटेरियन की जगह है मेन्यू में, वेजिटेरियन की जगह है आपने क्रॉस लगाना ना, लेकिन हलाल की जगह नहीं है। और मुझे इस चीज़ की बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि ये हमारे तर्स करके किसी ने नहीं करना। हम इस मुल्क के टैक्स पेयर हैं और जितनी भी सहूलियात हमें मिलती हैं वो बिकॉज ऑफ टैक्स मिलती है। और ये कहना कि मैं अब काफी जिसको डेनिश में कहते हैं ऐसी कि हम ये करेंगे, मुझे एग्जैक्टली कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे मादरी ज़बान की जो है ज़बान है कोपनहेगन कानून में हमने बड़ी लड़ झगड़ के अभी तक मौजूद है। ये कानून का खर्चा है। जब भी किसी बाहर के कानून के लोगों से मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं नहीं ये तो ये है तो वो है ना। लेकिन देखिए मैंने अपने वक्त में 8,000 लोग को वोट लेके एक पूरे मुल्क का एक रिकॉर्ड कायम किया था। ठीक है, आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि हमारी वो मुकाम कि हमारा वो ओहदा छीन जाएगा तो शायद आपकी किस्मत में नहीं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमें इस मुल्क में आइन के मुताबिक जो है एक अपनी मजहबी आज़ादी है, उस मज़हब को इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना, घर बैठे तो नहीं ये होना। तो उस दिन मैं बैठी हुई थी तो सोच रही थी, तो मैंने कहा कि इनमें से कोई जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो पॉइंट जवाब नहीं देते ना, आपने क्या करना। कोपनहेगन में 6 शोबे का, दाल-ओम का, हॉस्पिटल का, एल्फा का 6 हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई अब जो काउंसलर्स हैं ऐसा कोई नहीं होता कि आप सारी चीज़ों पे दिलचस्पी रखें कि कोई आप कहे कि ये मेरे दिल की धड़कन है। जैसे मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ किसी भी रंग के, मैं बहुत कंसर्न हूँ कि बच्चे सही हो, बच्चों की सहूलियात मिले वगैरह वगैरह। कोई नहीं बताना चाहता, ना बता रहा है कि वो एग्जैक्टली पेशेंट्स के लिए क्या करना चाहता है, कि बच्चों के लिए क्या करना चाहता है। तर्जमानी के लिए हमें हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी इतनी तजलील की जाती है कि आप इसको तुमने डेनिश नहीं सीखी, तुम्हें 25 साल हो गए हैं। तो मेरा इस तरह मैं डायबिटिक हूँ, तो एक अस्पताल है वो शुगर के मरीजों के लिए, तो वहाँ पे मेरी मुँह मारी होगी खातून से। मैंने कहा कि तुम क्यों इस पूरी औरत को इतना कर रही हो, तो कहती देखो ना इसने वो इतने सालों से रह रही है, ये डेनिश की सीखी हुई है रोज। मैंने उसको बड़े पोलाइट तरीके से कहा कि मैंने कैश थी उस चीज़ आवा यारी ये तुम्हारा काम नहीं है। कहती यो फलाना टमकाना ना, तो बहुत ज़्यादा बोली। तो मैंने कहा कि लेकिन अगर ये पेशेंट है तो तुम्हारी नौकरी है, तो पेशेंट नहीं होगा तो तुम्हारी नौकरी नहीं होगी। मैंने सेट कि तुम्हारा जो इस आउटडीलिंग का इसका डॉक्टर है, दरअसल वो उसने जो तुम्हें तैनात किया इस नौकरी पे उसने गलत किया। शायद काफ़ी शोर में क्या वो डॉक्टर साहब भी आ गए, क्या हुआ। मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कौन सा हॉस्पिटल, ये स्टीनो की बात ख्याली हॉस्पिटल की ना। लेकिन मुझे 2-3 पाकिस्तानी फैमिलियों ने अपने बिल भी दिखाए हैं कि जिनको बिल दिया गया है तर्जुमान की सहूलियत के लिए, तो उनको बिल भेजा कि आपको डॉक्टर ने वो उसको मंजूर नहीं किया।
मैं ये चाहती हूँ कि ये इस तरह की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाए। देखिए किसी को डिमेंशिया हो सकता है, किसी को कोई ऐसी डिप्रेशन की दवाई ली है 10,000। हमारा जो नया बना है डाटा का कानून, उसके मुताबिक किसी को सीधे हाथ को उल्टे हाथ को नहीं पता होता क्या कहा है। लेकिन मेरी कंक्लूशन यही है कि बेशक के हमारा पार्लियामेंट से ले के कानून तक हमारे लोग बैठे रहे हैं, लेकिन शायद हमने उसका पैटर्न नहीं कोई बनाया कि हमें एग्जैक्टली ये चाहिए। आप अपनी पार्टी में काम करते हैं, शौक से करें, लेकिन आप हमें ये तो बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या किया है। तो मेरी सजेशन ये है कि कुछ जो मैंने इनका जिक्र किया है कि जब इलेक्शन चुनाव ख़त्म हो जाए, ये लोग अपनी सीटों पे जाएं, तो इनको हर तीसरे महीने मैं लिख के पूछूँ कि आपने अपनी पार्टी में इंट्रोगेशन के लिए हमारे ये मुतलबात हैं, आपने क्या किया है, और आपने इसको आगे क्यों भेजा, मतलब जैसे टाउन हॉल में भेजा या किसी कमेटी में, और पार्टी का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ। अक्सर औकात पाकिस्तानी साल 6 महीने पहले मेंबर बनते हैं किसी पार्टी का, और इक्का दुक्का होते हैं जो इसलिए पार्टी के मेंबर बनते हैं कि उनको उस सोच से वो जो भी पार्टी का होता है सोच, उसके मुताबिक काम करना है। अक्सरियत चाहे वो किसी भी शहरियत की हो, उनका मकसद होता है इलेक्शन लड़ना। तो 6 महीने पहले बन गए, 8 महीने बन गए, हाँ ठीक है। तो फिर मैंने फाइनली ये फैसला किया है कि जैसे कि ऑलरेडी मैंने जिसको होएस कहते हैं उनको मैंने खत लिखा है कि हम जनवरी में आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। हम मीन चीज़ें मैं करूँगी, लेकिन मुझे ज़रूरत है कि प्रेशर डालने के लिए कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो साथ जाए, उनसे अब आप भी तैयारी करके जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना ना। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि एक जो इशू होता है ना, वो किसी पार्टी का यरगमाल बन जाता है कि यरगमाल ऐसे बन जाता है। अच्छा, ये सोशल डेमोक्रेट ने कहा हमने तो इनका साथ नहीं देना, तो कुछ इश्यूज ऐसे मैं करना चाहती हूँ जो मुझे पता है किस तरीके से करे बातचीत की जा सकती है, खुदा करे कि उसका हल निकले। तो मुझे सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि जब मैंने कोई इस तरह की मीटिंग तय की हो जो आम लोग हैं, अभी तो मैंने कोई गेमिंग सूसो असिस्टेंट है उनको साथ लेना है, कुछ जो एक है जो कि सीनियर सिटीजन के कोई आसिम साहब है, उनसे मैंने बात की है, उनको भी शामिल करना है। तो क्योंकि ये जो हमारा मसला है सीनियर सिटीजन, हमें अपने बच्चों से कोई खास उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, वो इस माशरे का हिस्सा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि माँ बाप जो नहीं अस्पताल में खाने के इंतज़ार में बैठे रहते हैं, और बच्चों को तो नो आंटी जी खाना तो अस्पताल का मिल जाता है, वो अम्मी नहीं खाती तो क्या करें। तो वो अम्मी से पूछो तो अम्मी कहती है तो इलाज हो। तो ये मसला है कि आप अगर मेरे फ्लैट में मैं अपने वालदैन को लेके आना चाहूँ, उनकी मर्जी में रजिस्टर कराऊँ, तो कहते हैं नहीं ये ख्याल फैमिली का घर है, तुम उसमें अपने माँ बाप नहीं रख सकती। लेकिन जब सहूलियात की बात आती है तो कहते हैं और दिखा है तुम अपने मम्मी अबू का तर्जुमा कर दो भाई, क्यों, ठीक है। फिर जब मेरी वालदा हयात थी, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो ये रोज़ का झगड़ा। वो आदमी फिर आ गए जो केयर टेकर नहीं है, जिसने शाम की तैयारी करके दवाइयाँ वगैरह दे के सफाई करके वो करना सुलाना होता है। फिर हमें किसी ने बताया कि कोई एक प्राइवेट फर्म है जो आपकी इस ख्वाहिश का रिस्पेक्ट करती है कि आपको मर्द चाहिए या औरत चाहिए, वो थोड़े से पैसे लेते हैं और बाकी जो नहीं है इजाफी चीज़ को जो नहीं है वो एटलीस्ट कोपनहेगन में वो है। मेरा जैसे दिल है कि इलेक्शन के बाद जो भी कोपनहेगन के अंदर हमारा सोशल का महकमा सेहत का, क्योंकि ये सबसे बड़ी कानून है, मैं रहूँ हम 15, 20, 25 लोग जाएँ और उससे जाके ये बात, क्योंकि ये एक बतौर मुसलमान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे जो बुजुर्ग है उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं बॉडी के वो अपोजिट सेल्फ देखे ना। और ये मेरा ख्याल अगर हम कर लें तो बहुत सारे लोगों की हमें दुआएं लगी। कुछ लोग डर के मारे इसी वजह से ट्राई नहीं जाते। और
تو اچھا یہ کوئی تنظیم نہیں ہم بنانے جا رہے ہیں. یہ جو ساری باتیں میں کہہ رہی ہوں میں آن آف کرتی رہتی ہوں, لیکن اب مجھے واضح طور پہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ کچھ ایشوز جو ہے وہ عوامی ایشو ہے. ٹھیک ہے نا, یہ میرے اکیلے کی بات نہیں ہے, یہ ہم سب کی بات ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آدھی سے جو ہاں جی میری ایفرٹ ہوگی وہ یہ کہ وہ سہولیات جو ہمیں نہیں مہیا, ٹھیک ہے, ہمارے مادری زبان کی جو تعلیم ہے چاہے کوپن ہیگن کمیون میں کسی جگہ اور کوئی اس کو چھونا نہیں چاہتا. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ پرائیویٹ ہے, آپ اس ملک کے ٹیکس پیئر ہیں, اس سے زیادہ اسٹرانگ کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے, اور ہر ٹیکس پیئر کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں, ایک جیسے نہیں ہوتی. تو بس یہی تھا میرا کہ اور کمونوں میں ہے ہی نہیں. ہاں جی, اور یہ کہ اگر کوئی یہ میں ایس ایف کی میئر تھی جب میری والدہ زندہ تھی, اس کے ساتھ میٹنگ کی, کہتی ہے کہ نہیں ہم خود سپورٹ کو نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ اگر گینوکلو ایک عورت نہیں سکتی ہے, تو میں نے مجھے یہ جو ہے زنانہ گینوکلو چاہیے, پردانہ نہیں چاہیے, تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ چیز اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ وقت آئے میٹنگ کے لیے ہم 200-250 دستخط لے کے ان کے ٹیبل پہ رکھیں کہ یہ جی یہ سب کا مشترکہ مطالبہ ہے, کیونکہ اس کو کوئی سیاست اکیلا نہیں کرتا. میں نے سب کو دیکھی ہے بہت معذرت کے ساتھ, جتنے بھی ہمارے ساتھ, ہاں دیکھو ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں میں نے بہت شروع میں کہا تھا کہ اپنے دل سے یہ چیز نکال دو کہ یہ تمہیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے. میں آپ کو یقین کریں کہ جس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرے 8,900 ووٹ ہیں, میں جب اس کمرے میں آئی, آصف صاحب ہمارا بہت بڑا میٹنگ کا کمرہ تھا, وہاں پن ڈراپس آئی کہ ایک ہی سیاپا پہ آئی. کسی نے مجھے کنگریچولیٹ نہیں کہا, کسی نے مجھے مطلب کچھ بھی نہیں کہا, بس اتنا سستا نہیں ہوتا ایسا. ہاں, تو باقی جو ہے کہ ہماری بہت ساری تنظیمیں ہیں, تنظیموں کو بھی شاید اپنی ایفرٹ کا تعین کرنا چاہیے. تو کچھ چیز وہ لوگ کر سکتے ہیں, جیسے میں شہر کی خاتون ہوں, میں 200 بندہ نہیں کر سکتی, میں کسی گاؤں سے نہیں, میری کوئی برادری نہیں ہے, یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. میرے کام کرنے کا طریقہ اور ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ جو کہ اب جن کے تجربات ہیں, جو ان چیزوں سے ایشوز پہ کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے آصف صاحب کا آپ کو ذکر کیا ہے, وہ مجھے اب یاد نہیں, ان کی میری کسی جگہ ملاقات ہوئی تھی, تو وہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑے ایک میری جو آنکھوں میں آنسو آگے جس طریقے سے اور جس محبت سے وہ بتا رہے تھے. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو شملہ اونچا کرنے کے لیے نہ کسی کمیٹی میں آئیں تو کچھ دے کے جائیں, کام کریں. وہ میں نے ان کا نمبر میں ڈھونڈ رہی ہوں, ان سے میں ریکویسٹ کروں کہ میں آؤں کہ وہ آئے. تو یہ چھوٹی سی مطلب میری کوشش ہے, اور یہ آپ لوگوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی, کیونکہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. میں بے شک لکھتی جاؤں, لیکن یہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ ایٹ لیسٹ شہریوں سے آئے. جیسے پچھلے سال مادری زبان کی تعلیم بالکل بند کر دیتے ہیں, ہم نے تقریباً 300 دستخط جمع کیے. پھر میرا بیٹا خود جرنلسٹ ہے, اس نے اس سے بات کی, انفارمیشن اخبار سے کی. پھر ایک ہے ہمارے کونسل کاشف احمد ریڈیکیل کے, انہوں نے اس کو اٹھایا وہاں سے, تو ایک کون سا بن گیا نا. تو اٹ ٹیلز اس کہ اگر آپ نیٹ ورکنگ کریں اور صرف ایک چیز کے بارے میں کریں تو بہت کچھ ہوگا.
मैं भी पाकिस्तानी तंजीमों का हिस्सा रही हूँ, उनको अपना काम करने दे। उसका किसी को ये बुरा नहीं बनाना चाहिए, किसी को उसको नहीं बुलाया तो उसको नहीं बुलाया। मेरे काम करने का तरीका मेरी जरा बराबर की तहत में भी मैं थोड़ी सी सख्ती भी करती हूँ। मैं ऐसा रखना नहीं है ऐसा और ऐसे बुद्धि से तो क्योंकि आप में से जितने लोग बैठे हैं बात सलाहियत है और कुछ ज़रूर आप कुछ लोग देंगे। मुझे कोई इस चीज़ का शौक नहीं कि हम किसी जगह बैठे हैं, बड़ी बड़ी हमारी तस्वीरें छप जाए, ये कर जाए, वो कर जाए। आई डोंट नीड इट। मुझे पाकिस्तानियों में बताने की जरूरत है कि मेरा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा नवाजा। लेकिन इसमें एक प्लेटफॉर्म में बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें आपको भी मौका मिलेगा कि आप अपना किरदार अदा करें, क्योंकि घर बैठे कुछ नहीं हो सकता। आने वाले वक्त में मेरे दिल में मैं सोशल डेमोक्रेट की बात सुनती हूँ, इबारत भी इन बिटवीन लाइन्स मुझे बहुत इस चीज़ का खदशा है। अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, 10 या 15 साल के बाद ना मुझे लगता है कि हमारे नाम के बाद जब मुसलमान होगा ना तो उसके ऊपर क्रॉस लगेगा कि वे मुसलमान है। इस किस्म की नफरत हमारी स्टेट में फैला रही है सोशल मीडिया। और एक और मैं कहूँगी आपकी मुखातब से कि अगर आप अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, तो खुदा ना सोशल डेमोक्रेट की किसी कैंडिडेट को या सोशल डेमोक्रेट को मत रोके, वरना ये खून जो होगा कभी उसमें आप भी शामिल होंगे। कि अब वो जो बयान ओम की कमेटी नहीं है उसमें पाकिस्तानी भी काशिफ अहमद साहब बैठते हैं, उससे मेरा अक्सर तबादला ख्याल होता है। तो वो अकेला है, लेकिन अगर हम एक वफद बना के लेके जाए कि भाई क्योंकि यहाँ पे हमने ये नहीं कहना कि यह गलत है, तुम इतने बच्चों को कर रहे हो ना, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं। बच्चे स्कूल टीचर, एक बच्चा ज़्यादा अरसा नहीं है, उसकी माँ ने उसके साथ वायलेंस किया, अगले दिन वो यार अपना टूटा बाजू लेके ना अपने टीचर के पास आया, कहता मुझे नहीं पता तुम्हें कहा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बच्चे इस चीज़ के मुस्तहिक है कि उनको लाल खाना दिया जाए, उनका किसी भी मस्जिद को कह ले, कहीं से कोई ना कोई बंदा उनको अपने मजहब के बारे में बताए। डैनिश लोग निगर साहबा, आप इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कि लुबना इलाई साहिबा ने ये अरेंज की है कमून के इलेक्शन के हवाले से, और इसमें मुख्तलिफ टॉपिक पे बातचीत हुई है, तो क्या आप कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लुबना ने बहुत अच्छा इक़दाम लिया है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको हम सोचते रहते हैं लेकिन हम अपने ज़ुबान पर नहीं लेके आते और ना ही उनको डिस्कस किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, और अगर हम एक तिनका उठाएंगे तो कल को ये हमारे लिए एक बहुत मजबूत तना बन जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि इन सारे सब्जेक्ट्स पे हम सबको गौर करना चाहिए, ना सिर्फ जो यहाँ बैठे हो उन लोगों को, बल्कि हमारी सारी कम्युनिटी को इन मसाइल की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि ये तमाम मसाइल हमारी सारी कम्युनिटी के साथ मुंसलिक हैं। थैंक यू। ये जो प्रोग्राम बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया लुबना ने, और सब ने अपने दिल की बात की, लुबना पर सवालात भी किए, और अच्छी इनिशिएटिव है। देखें ना, बड़े अरसे के बाद अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करता है तो सबको ताउन करना चाहिए। तो शेख साहब, आप तो हर जगह मौजूद होते हैं, जितने भी अच्छे काम हो, अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं निगत, तो ये भी बड़े अरसे के बाद आई हैं, मीडिया पर्सन है, हमारे साथी हैं, हमारी बरादरी है, शेख इलाके के हम तल्लक रखने वाले हैं। लेकिन देखें, मीडिया नज़र तो आया कम अज़ कम, तो ये लुबना को क्रेडिट तो जाता है, आपको भी जाता है। थैंक यू जी। आज लुबना इलाही ने यहाँ पाकिस्तानी मीडिया के तमाम जितने भी सरकर्दा सहाफ़ी हैं उन्हें मदऊ किया है, बड़ी इज़्ज़त दी है, और अपना काम जो वो कर रही हैं उसकी तफसील बयान की है। और 40 साल से वो इस मैदान में हैं, सियासी मैदान में, और उन्होंने एक रिकॉर्ड वोट भी लिए थे जिस वक्त इनके लॉर्ड मेयर बनने के चांसेस सामने आए, लेकिन इन्हें नहीं बनाया गया। तो वो ये दर्द और दुख आज भी उसी तरह बयान कर रही हैं कि हमें आपस में एक होकर इत्तेफाक करके अपने मुतालबात मनवाने चाहिए। जैसे कि अगर पलाइम में ख़वातीन हैं, वहाँ पर मर्दों को भेजना, उनकी बजाय ख़वातीन को भेजा जाए, और दूसरे बच्चे जो हैं जिनको उठा लिया जाता है घर से, ये मैं समझूंगा कि उनके वालिदैन के लिए भी एक मैसेज है कि आप तशद्दुद ना करें, बच्चों से डेनमार्क के कानून के मुताबिक डील करें। थैंक यू। देखें जी, आज बड़ी अच्छी एक यहाँ पे गैदरिंग की है हमारी लुबना अपी ने कि जो डेनमार्क में इलेक्शन होने वाले हैं 1-2 हफ्ते में,
تو اس کے حوالے سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ جو امیدوار ہیں جو بعد میں الیکشن جیتیں گے ان سے پوچھا بھی جائے نہ صرف ایک دفعہ بلکہ گاہے بگاہے کہ انہوں نے جو وعدے کر کے ووٹ لیے تھے کیا وہ ان وعدوں کا پاس رکھ بھی رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، تو وہ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کریں گے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا انہوں نے کیا ہے۔ تو ان کی کوشش یہ ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے کہ ان کو اس چیز کی ہر گزرتے دنوں کے ساتھ یاد دہانی کروائی جائے کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے، کوئی اپنے لوکل مسائل حل کرنے کے لیے، کچھ مسائلوں پہ اپنے جو مسائل ہیں وہ پارٹی میں لے کے جانے کے لیے، تو ہم ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے، میرے خیال سے یہ جاری رہنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ لوگ ملتے جلتے بھی رہے اور جو سیاستدان ہیں انہیں بھی اس بات کی ایک یاد دہانی رہے کہ ان کے اب پیچھے پوچھنے والے لوگ بھی ہیں جو ان سے ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھیں گے۔